Good morning. We will start in 2 minutes. Let everyone join. एक घूट पी के देख एक घूट मम्मा Okay, guys, good morning. Let us begin today's class on speed reading. So next two sessions on of English, 2 or maybe even 3, I will be focusing on how to improve your reading speed. All right. So far, what we have done in our English classes, we have understood components of a passage, right? What are the different components of passage that we have discussed? Anyone who writes always subconsciously have these components in mind. आपके दिमाग में वो सब, बेटा ये एनोटेशन वगैरह मत करो, टाइम पास करने नहीं आए हो ना तुम लोग क्लास में. स्विच ऑफ करूं क्या ये? Okay. So components of passage, anybody who writes subconsciously वो इन चीजों को ध्यान में ही रख के करता है. सबकॉन्शियसली ऑब्वियसली पता नहीं होता है. एक मेन आइडिया होता है, उसको बताने की वो कोशिश करता है. उस मेन आइडिया एक कंपोनेंट है मेन आइडिया, यानी दूसरा है टू सपोर्ट दैट मेन आइडिया ही गिव्स सेवरल एविडेंसेस. दिस इज द सेकंड कंपोनेंट. एंड बैकग्राउंड बिल्ड करता है, दैट इज द थर्ड कंपोनेंट. कुछ कुछ पैसेजेस में उसके implications भी बताता है. Those who have missed my class, they should watch the recording of that session. It is very very important to understand what are the components of a passage. Then in the second class we discussed what are the different traps that are set by examiner. एग्जामिनर जो है वो कैसे ऑप्शंस में अलग अलग तरीके के जाल बिछाता है ताकि आप उसमें फंस जाओ. तो हमने उन जाल को आइडेंटिफाई करने का तरीका समझा था. अगेन यू नीड टू वॉच द वीडियो इफ यू हैव मिस्ड द क्लास, एंड irrespective of whether you have attended it, I will suggest that in videos को, शुरू के वीडियोस को, जो आज की भी क्लास है जैसे, इनके आप जितनी बार देखेंगे उतना आपके लिए ही फायदा होगा. ठीक है, right? So now today we will be starting with speed reading and we will continue it for next maybe 2 or maybe even 3 classes. Let me tell you what is my idea of speed. Okay, ठीक है. स्पीड का मतलब कहीं से भी ऐसा नहीं है कि मुझे 1000 वर्ड्स या 500 वर्ड्स पढ़ने हैं. ठीक है, या पीपल कैन रीड इवन 1000 वर्ड्स इन अ मिनट. होते हैं ऐसे भी लोग. 500 वर्ड वाले तो बहुत मिल जाएंगे. But from the point of view of exams that you are aiming, even 300 to 350 words per minute would be very good. This would be very good if you can achieve. Right now your reading speed would be around
my guess is 150 to 200 words per minute, depending upon the type of subject that you are reading. If subject is very easy, you might read 200 words per minute. If subject is complex, it goes down to even 100 words. Now it varies. All right, this is average what we are talking about. अब एवरेज तो हमें पता है ना, एवरेज मतलब हर मिनट में इतने वर्ड पढ़ूं जरूरी नहीं है, कभी कभी कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें आ जाती तो मैं धीरे धीरे पढ़ता हूँ, फिर इजी चीज आती तो मैं बढ़ा देता हूँ। मेरे हिसाब से रीडिंग स्पीड अगर इंप्रूव करना है तो इस आर्ट को सीखना ही सबसे इंपॉर्टेंट होगा, हाउ टू एंटिसिपेट एंड वेरी योर स्पीड अकॉर्डिंगली। I think even in my last sessions, I have given you this as an example that if you watch movies, if you watch web series, you are able to anticipate कि क्या बोलेगा, ठीक है? The moment you are able to anticipate, even in reading that can happen, you should increase your speed. I don't know, अगर आप anticipate कर लेते हो तो अब तो थोड़े दिन में I am sure सभी लोग 1.5x में देखने लग जाएंगे if you are able to anticipate. अनफॉर्चुनेटली मशीन 1.5x में पढ़ सकती, क्या हमारा दिमाग भी 1.5x हो सकता है? यस, हो सकता है। अगर आप एंटिसिपेट कर लो कि आगे क्या आने वाला होगा, यू कैन फास्ट फॉरवर्ड योर रीडिंग। आई एम नॉट सेइंग स्किप, डोंट स्किप, आई एम नॉट सेइंग स्किप, रीड इट फास्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट। Then if the new element comes, I will again slow down. Anticipation is very, very important in reading, and understanding nuances of writing. That is why all my classes are connected. Please do not miss my classes, and I will again recommend that before every class you can watch the recording of previous class. That will help you in a better way to understand what we are learning. So firstly, what we will do, I am giving you 2-3 minutes time. This test drive, there are 8 questions. They are not related to speed reading, but let us quickly do it since they are given, and we will learn few new words. I am giving you 2 minutes time to complete it. I hope everybody has sheet. I've shared it in both the Telegram groups. I hope everybody has sheet. If no, if anyone doesn't have, please tell me. So everyone has sheet. Kindly confirm. I forgot to ask whether I am audible or not. I hope I have been, because nobody has said anything. So I'm giving you 2 minutes time. Solve these 8 questions. Either you know them or you don't know them. You follow the sheet on your own screen. I'm not moving with each for each question. I'm not moving the slide.
Okay, done. Let us see. The disease had weakened her dash and she could not dash in time for the meeting. So what will come here, understand, what will come here is something like cause and effect relationship in the blanks. Why? Because let us understand what it is saying. Disease के वजह से she got weakened. Disease had weakened her dash. Disease से क्या weak होता है? और अगर कोई चीज वीक हो गई है तो उसकी वजह से वो मीटिंग टाइम पर अटेंड नहीं कर पाई या मीटिंग के लिए टाइम पर डैश नहीं हो पाया. ठीक. The disease, the two things should have something related to cause and effect. All right. So let us see. What is your answer? Okay. So I have got three answers. There are 18 people. I am 19, 20 people rather. I expect at least 7, 8 should answer. Negative marking हुई तो हुई यार क्या है? अभी थोड़ी ना मिल रहा है कुछ negative. All right. So no, out of 9 people, no one has given me the right answer. Absolutely no one has given me the right answer. See, guys, आप logically सोचो ना यार. आप कभी ऐसे बोलते हो क्या मेरी एनर्जी कमजोर हो गई है? आप बोलते हो? Why are you saying that disease had weakened her energy? आप अपनी मदर टंग में ट्रांसलेट कर लो. आप एनर्जी बोलते हो क्या कि मेरी एनर्जी कमजोर हो गई है? Tell me, does it even make sense that disease had weakened her? Yes or no? Tell me. No, then why are we marking 1 just because of the word recover? Just because of the word recover, in both the blanks the best word should fit. Right? So you never say कि मैं कमजोर हो गया means okay. मेरी एनर्जी कमजोर हो गई है इज नॉट ओके. आई नेवर से दैट. तो द डिजीज हैड वीकेंड हर व्हाट? बॉडी बोल सकता हूं मैं, स्ट्रक्चर बोल सकता हूं, कुछ ऐसी चीज बोल सकता हूं. व्हाट विल आई से? ठीक, तो फर्स्ट ब्लैंक नहीं. द डिजीज हैड वीकेंड हर एबिलिटी. एबिलिटी टू डू व्हाट? कभी बोलते हो क्या ऐसा? द डिजीज हैड वीकेंड हर एबिलिटी. आप कंप्लीट करते हो एबिलिटी टू डू समथिंग. प्लस more than that, and she could not reassemble in time for the meeting. आप किसी इंसान के लिए reassemble और disassemble यूज करते हो कि कंप्यूटर्स के लिए यूज करते हो? Assembly, reassembly. Have you ever used it for a person that I cannot reassemble myself as if you are part of a machine and it requires reassembly? Not the answer. Answer nobody has given me. Few have given towards the end. It is option number 3. The disease had weakened her constitution. Constitution matlab the entire built or makeup, not the cosmetic makeup, right? It's the entire build. The disease के वजह से उसका जो constitution है वो weak हुआ. And she could not recuperate. Recuperate मतलब after disease जो हमारा वीकनेस वाला पीरियड होता है. डिजीज तो हो गई खत्म, लेकिन उसके बाद जो वीकनेस वाला पीरियड होता है, जब मैं एक्चुअल लाइफ में नहीं आ पा रहा हूं, आई एम फाइन बट आई एम नॉट एबल टू कम बैक टू लाइफ. दैट पीरियड इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ रिकूपरेशन, पीरियड ऑफ कमिंग बैक टू लाइफ आफ्टर डिजीज. ओके, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. देखिए ऐसी सिली मिस्टेक्स मत करिएगा, एक वर्ड फिट करने के चक्कर में मत रहिएगा. ठीक है, नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू डेड रिंगर? डेड रिंगर का मतलब होता है डुप्लीकेट. डेड रिंगर इज एग्जैक्ट सेम कॉपी. प्लीज डोंट मार्क दिस एज द आंसर बिकॉज डुप्लीकेशन इज डिफरेंट, डुप्लीकेट इज डिफरेंट. ठीक है, यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच ही चेंज हो गया है. आंसर इज 4th, डॉपलगैंगर. Doppelganger and dead ringer are both means exact copy of something, duplicate. Fine. Corpse means dead body. Morbid is something very gloomy and dark. ठीक है, तो डॉपलगैंगर याद रखिएगा, एग्जैक्ट कॉपी. आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हो कि आप भाई को बोल रहे हो, बहन को बोल रहे हो, इज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ योरसेल्फ, यू कैन कॉल इट एज डॉपलगैंगर. फाइन. नेक्स्ट. एवरीवन laughed at him because he was quite like a woman. Tell me.
जल्दी से गाइस, कम ऑन, वी कांट वेस्ट टाइम हियर, आई हैव गिवन यू इनफ टाइम। आप लोगों ने बनाया भी है कि नहीं? Okay. So this is not the answer which most of you are saying. All right. Everyone laughed at him because he was quite like a woman. Now he was quite like a woman. तो women के जैसे था. उसको feminine नहीं बोलते. Feminine is a positive word to use. बोलते हैं ना feminine grace है. तो feminine is a positive word to use. Used for female possessing qualities of a female. तो वो उसके लिए use होता है. जैसे masculine है for someone who is male, muscular and powerful, उसको represent करता है. Even feminine is a positive word like masculine. तो positive word है. Answer is effeminate. Effeminate means very physically weak. Particularly ये उनके लिए यूज होता है जो थोड़ा women टाइप के बिहेवियर करते हैं, फिजिकली थोड़ा वीक दिख रहे हैं. ठीक है, दैट इज effeminate. Very easy. Next. Guys, you people are not responding. Have you solved the sheet? नेक्स्ट टाइम मेरी शीट पहले से सॉल्व होके जो आएगा वो क्लास में बैठेगा, अदरवाइज यू विल बी आउट ऑफ द क्लास. राइट. आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, गिव अवे. गिव अवे मतलब किसी को गिफ्ट देना जैसा कुछ. नॉट इफ नॉट यू डोंट वांट टू कॉल इट एज गिफ्ट, बट जस्ट गिफ्ट जैसा ही समझो. राइट. गिव अवे मींस पार्टिंग अवे विद समथिंग. पार्टिंग अवे, दूर होना किसी चीज से. गिव अप तो गिव अप मार दिया मतलब उम्मीद छोड़ दिया. गिव अप ऑन समथिंग. द फादर गिव्स अप द ब्राइड मतलब अब इससे कोई उम्मीद नहीं है काइंड ऑफ. तो ये तो बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा है. वन बोल रहे हो आप, काफी लोग वन बोल रहे हैं. ठीक है यार. ये अच्छा, ये एवरीवन मैसेज किया हुआ, इस वजह से सब गलत आंसर दे रहे हो. दूसरे को देख के आंसर मत दो बेटा. होस्ट ओनली कर दिया है मैं, अपनी अकल लगाना. तभी आई गॉट इट दैट why everyone is marking wrong answer. Okay, next, quickly. Okay, ठीक. तो अब मीनिंग देखते हैं. द रिच मर्चेंट वाज लव्ड फॉर हिज डैश नेचर. पैसे वाला था और लोग उसको प्यार करते थे. तो कुछ तो पॉजिटिव चीज होगी ना, तभी प्यार करते होंगे लोग. वाज लव्ड. तो आंसर इज ऑफ कोर्स एक तो जेनरस होगा. रिच भी है, लव्ड है. जेनरस मतलब क्या होता है? वन हु डोनेट्स अ लॉट, वन हु इज लार्ज हार्टेड. ठीक है. तो 2 तो है ही है, सॉरी 3 तो है ही है. 3 अगर है तो 1, 2 एंड 4 सब हो सकते हैं अभी तो. मैग्नानिमस, मैग्नानिमस का मतलब होता है लार्ज हार्टेड, सेम एज जेनरस. मैग्नानिमस मतलब लार्ज हार्टेड, लार्ज स्पिरिटेड. ठीक है. मैग्नानिमस एफर्ट मतलब बहुत हिम्मत वाला जो काम किया, उस तरीके से भी यूज होता है. तो आंसर इज 1 एंड 3. फेब्राइल मीन्स showing symptoms of fever. ठीक है. showing symptoms of weakness या fever. ठीक है. apathetic means lack of feeling. when you do not feel anything about a particular object, कोई भी चीज को लेकर के आपकी कोई फीलिंग नहीं. फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिक्स, आपको कोई लेना देना नहीं है. क्या चल रहा है चलने दो यार, हमें क्या लेना देना. तो you can call yourself apathetic towards politics, या you have apathy towards politics.
कोई भी ऐसी चीज जिसपे आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ना वो अच्छा लगता है ना बुरा, आप बस चुपचाप बैठे रहते हो रहा है जो हो रहा है, इट डजंट मैटर टू मी, दैट इज apathetic. I hope right now you are not apathetic towards the class, are you? Answer me. Only one person has answered, so maybe you all are. No, na? Fine, thank you. Start using words in your day-to-day life. Okay, but there are 5 questions or 8 questions? Only 5. Yeah, okay, I thought that there are 8. All right, so we have seen different types of vocab question that can be asked. Is there any other type of vocab question? There can be many types of vocab question. More important, which examination ask vocab questions? Directly vocab questions आते हैं IIFT, नारसी मुंजी का एग्जाम होता है, एनमैट, स्नैप, इनमें कैट में डायरेक्ट vocab के क्वेश्चन नहीं आते. However, if you are poor in vocab, you will not understand the passages that are given. You will many times not even understand the question that is asked, forget about answering them. So vocab is absolutely essential, and my foundation, particularly मैं जब अगर अपनी बात करता हूं, why I score high in verbal every time I write cat, I think my foundation of vocab is very strong. मतलब मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी उस समय अपने vocab में when I was a student, and that helps me till date, right? How to remember words, it is a painful thing. Okay, we all forget words. अगर आपको words भूलते हैं आप, तो आप अकेले नहीं है. अभी भी मेरे साथ भी ऐसा होता है. I come across new words, books पढ़ता हूं तो I read it, I find the meaning of that word, I say कि अरे वाह बढ़िया word मिला. After 4 to 5 days I forget it, and next time the same word comes, then I am lost कि अरे ये देखा देखा लग रहा था. ठीक है, but then we all forget. But as a student, how I did not forget and why I remember words till date is because I had the habits of making notes. Now it is no incentive for me कि कुछ notes बनाओ. But where you are right now, you all should make notes. See, टेक्नोलॉजी कितनी भी आ गई हो, ठीक है, हम सब टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और शायद मैं आपसे ज्यादा ही यूज करता हूँ, बट एक चीज मैं अभी भी बता दूं, हार्डवर्क के कुछ फंडा अभी भी वैसे ही हैं. आप लिखना नहीं चाहते हो, आई एम फाइन विद इट इफ यू डोंट वांट टू राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड. आई एम एब्सोल्युटली फाइन. यू मेक अ डॉक्यूमेंट एंड शेयर इट इन योर गूगल ड्राइव and just keep on adding the words and meanings to it. Absolutely fine with it. कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आप वो कर लो. कभी भी आप एक्सेस कर सकते हो, गूगल ड्राइव में है तो you can refer that anytime. Revision of words is important. Don't try to mug it up. Mug up करने जाओगे तो you will forget. Just trust your instincts. आपने वर्ड एक बार पढ़ा, उसको किसी से रिलेट करो, उसको एसोसिएट करो. दैट इज हाउ यू रिमेंबर दी वर्ड्स. एसोसिएट. फॉर एग्जाम्पल अपैथी में पढ़ा रहा था, मैंने तुरंत क्लास से रिलेट कर दिया कि आप अपैथेटिक तो नहीं हो क्लास के लिए. फेब्राइल आपने पढ़ा, आपने रिकूपरेट पढ़ा, तो रिकूपरेट अगर किसी को अभी कोविड हुआ तो आफ्टर कोविड देयर आर पीपल और देयर आर कंप्लेंट्स कि उनको इस बीमारी से, मतलब ऑल्दो कोविड तो ठीक हो गया, बट उसके जो सिम्टम्स, या बोलना चाहिए कि उसकी वजह से जो कमजोरी हो रही है, इट इज टेकिंग टाइम फॉर देम टू कम बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ, so they are not able to recuperate को उससे जोड़ करके देख सकते हो. There are ways in which you need to associate the words. The problem is that we want everything quickly, जल्दी हो जाए. Impatience सिर्फ कॉल सेंटर में फोन लगाते समय रखना. अपने करियर बनाने के लिए impatient हो जाओगे, जल्दी हो जाए तो कुछ नहीं होगा. ठीक है, right? So here we need to, because it is you, it is not someone else, because it is you, you need to give time to yourself, right? So associate the words, note it down the way you want to note it down. You want to make notes, वैसे कर लो, जैसे करना है आप कर लो. एंड हर 15-20 डेज में एक बार रिविजन करने का बना लो, या रिवाइज कर लेंगे. रिवाइज करते रहोगे, 3 से 4 बार का रिविजन हो जाएगा, यू विल रिमेंबर इट. ठीक. हाउ टू क्रिएट विजुअल और ऑडिटरी लिंक्स टू इंप्रूव वंस वोकैब, जैसा मैंने विजुअलाइज करने बोला, आप एसोसिएट कर लो. That is the best way to improve your vocab and remember the words. In our city,
you will not be speaking English. I know that you will not be speaking in English, and that is a common phenomenon. In fact, मतलब वो उसका यूज तो नहीं होगा, तो आप यही कर सकते हो कि आप अपने ऊपर मेहनत करें, वो इंपॉर्टेंट है, और एक टारगेट लेके चलें कि 6 मंथ में 1500 वर्ड्स मुझे करने हैं। 6 मंथ 1500 वर्ड्स मतलब 1 मंथ हाउ मेनी वर्ड्स? 250 words. 250 words in a month means 1 day how many words? Divided by 30, तो 8 to 9 words per day. मेरे को हर दिन 8 से 9 नए वर्ड्स करने। जब मैंने 1500 वर्ड पर 6 मंथ बोला तो हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगा हो। जब मैंने 8 to 9 न्यू वर्ड्स पर डे बोला तो हो सकता है इजी लगा हो। द प्रॉब्लम इज दिस इज मोर डिफिकल्ट बिकॉज नाउ आई एम आस्किंग यू टू बी इन डिसिप्लिन। आप अब टाल नहीं सकते। आप ये नहीं सोच सकते 6 महीने का टाइम है ना, आखिरी 2 महीना करेंगे। द वे यू डू इट, प्लीज डोंट डू इट। स्टार्ट डूइंग नाउ, डू इट डेली। If you are not able to do 8 words in 1 day or 10 words in 1 day, make sure that you learn 20 new words next day. How will you learn? I will recommend first and foremost Word Power Made Easy. I do not like the apps that claim कि आपका vocab build होगा, नहीं होता, ठीक है। I don't like the apps like InShorts which claim that आपका, they don't claim anyways. People say that उससे न्यूज पढ़ने से उनका जीके इंप्रूव हो रहा है। तुम बॉलीवुड की न्यूज पढ़ते हो, उस पे क्या बता रहे हो उससे जीके इंप्रूव हो रहा है? कुछ नहीं होता। These things, if they have to be improved, a proper method has to be followed. Word Power Made Easy, absolutely masterclass book. First few sessions are not good. After that you will sail through the book. शुरू का 20% पेनफुल है, उसके बाद आपको बड़ा मजा आएगा। मजा आएगा बोल रहा हूं, याद रखेंगे। शुरू के 10 सेशन 50 में से बोरिंग है, आपको लगेगा कि ये दुनिया का घटिया काम मैं क्यों कर रहा हूं। आफ्टर 10 सेशंस, the next 40 sessions, you will absolutely enjoy it. So please do it, right? Hardly 150 rupees की book है. This will be the best investment for your career that you can make. Forget about CAT, forget about anything. I have been telling this for past 12 years. This is the first book that I completed. This is the first book that anybody will recommend you for vocab. After this, there are many things that we can do, but इसको तो हम कर ले, ठीक है। इसको आप कर लोगे 2 महीने में तो आपके काफी वर्ड्स ऐसे ही प्रिपेयर हो जाएंगे। ऑलराइट, अच्छा ये और भी थे, ओके। चलो इसको छोड़ के अब आज के काम में चलते हैं, स्पीड रीडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भैया इफेक्टिव रीडर और इनइफेक्टिव रीडर क्या होता है, ठीक है। What according to you is difference between effective reader and ineffective reader? Remember, we all have to become effective reader. If you are effective reader, your speed will automatically increase. So if you want to improve your speed, be effective reader. But what is an effective reader? क्या आप बता सकते हो आपके हिसाब से? Think and tell me. नहीं, अभी तुम लोग बहुत ये स्पीड में जा रहे हो। नहीं नहीं, स्पीड पे नहीं जाना है। हम बोल रहे हैं इफेक्टिव रीडर कौन होता है। All right. Firstly, and the most important thing, effective reader will only read for the main idea. इसका पूरा का पूरा ध्यान होगा ये जो मैं पढ़ रहा हूं इसका मेन आइडिया क्या है ये निकालने। इनइफेक्टिव रीडर जो होता है वो फैक्ट्स पे ध्यान देता है।
यार ये फैक्चुअल चीज दिया हुआ है, फैक्ट्स पे ध्यान देगा, इंसान के नाम पे ध्यान देगा, जगह पे नाम देगा, वो सब जीके के लिए, रीडिंग के लिए नहीं। वो सब जीके में काम आ सकता है, बट अभी हम रीडिंग सीख रहे हैं कि इफेक्टिव रीडिंग किसको बोलते हैं। इफेक्टिव रीडिंग इसको बोलते हैं कि तुम्हें पर्पस समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज बीइंग रिटन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट। डोंट फोकस ऑन फैक्ट्स, फोकस ऑन getting to the main idea why he has written this, right? That is what is the thing to remember. The second thing is effective reader will vary their speed को vary करेंगे। इनइफेक्टिव रीडर एक मोनोटोनस वे में पढ़ता है, और इस वजह से आप कभी भी अगर कोई पढ़ता नहीं है तो दैट इज, कोशिश जरूर किया होगा बुक पढ़ने की, 3 से 4 पेज से ज्यादा आप नहीं पढ़ पाए, मोनोटोनस वे में पढ़। और एक चीज वैसे भी याद रखें, दुनिया की कोई भी बुक उठा लें आप, चेतन भगत टाइप के नॉवेल्स को छोड़ के, चेतन भगत टाइप के, मैं उनको डिमीन नहीं कर रहा हूं, मैं बस बोल रहा हूं, चेतन भगत टाइप के नॉवेल्स को अगर आप छोड़ दें तो कोई भी अच्छा नॉवेल उठा लें, आपको शुरू के 30-40 पेज चीजें समझ में नहीं आएंगी। मूवी में शुरू के 15-20 मिनट आपको चीजें उतनी समझ में नहीं आती जब तक आप सलमान खान की मूवी नहीं देख रहे हैं। उसी तरीके से बुक्स में भी वैसा ही है, प्लीज गिव इट टाइम। You buy a ticket, you spend entire 2.5-3 hours inside a movie hall। आप 30 मिनट्स बाद छोड़ के नहीं आते हैं कि यार समझ तो नहीं आ रहा है, चलते हैं। बुक को क्यों छोड़ते हैं? बुक को भी मत छोड़िए, ठीक है, राइट। सो थोड़ा सा टाइम दीजिए। मोनोटोनस लग रहा है तो थोड़ा सा स्पीड वेरी करके देखिए। इफेक्टिव रीडर जो होगा उसे पता है कहाँ मेरे को आगे तेजी से बढ़ना है। मूवीज के साथ तो वो कर भी नहीं सकते, अगर मूवी हॉल देखने गए हो, सिनेमा हॉल देखने गए हो, मल्टीप्लेक्स गए हो, दैट इज राइट, तो यू कैन नॉट वेरी योर स्पीड, बट गुड पार्ट अबाउट रीडिंग इज दैट यू कैन वेरी योर स्पीड। ऑलराइट, दे एंटीसिपेट, आगे का सोचते हैं, आगे क्या आएगा। ये बेचारे पीछे का सोचते हैं, यार पीछे क्या पढ़ा वो याद नहीं है मेरे को, रिग्रेस करते हैं, ये एंटिसिपेट करते हैं। दे फोकस ऑन बिल्डिंग वोकैब, इनका फोकस होगा कि वोकैब भी बिल्ड करें, दैट विल हेल्प देम टू बी अ बेटर रीडर। यहां पर दे डोंट वर्क ऑन द स्किल्स, नो स्किल्स, दे डोंट वर्क ऑन द स्किल्स। स्किल इंप्रूव करने में कोई काम नहीं होता। मुद्दे की बात हमें यह समझना है कि मुझे एक इफेक्टिव रीडर बनना है तो स्पीड अपने आप आ जाएगी। मैं मेन आइडिया पे फोकस करूं, और उस मेन आइडिया तक आने के लिए किस तरीके से पैसेज लिखा गया है उस पे फोकस करूं। स्पीड में बढ़ने से बेहतर है कि मैं एंटीसिपेशन या स्पीड वेरी करना सीखूं। स्पीड वेरी करने का कुछ एक फंडे ये है कि शुरुआत, हर पैराग्राफ की शुरुआत आराम से पढ़ूं। द मोमेंट मुझे समझ में आने लगा कि आगे क्या लिखा होगा, अपनी स्पीड बढ़ाऊं, ठीक है, राइट। सो एवरी पैराग्राफ थोड़ा सा आराम से शुरुआत में, जब समझ में आ जाए तब मैं आगे बढ़ जाऊं। अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है तब तक के मैं स्लो पढ़ते रहूंगा, बट छोड़ूंगा नहीं, स्लो पढ़ते रहूंगा। अगर मुझे समझ नहीं आ रहा है यार, तो 90% लोगों को समझ नहीं आ रहा हो। दैट इज द बिलीव दैट यू शुड हैव। यू ऑल आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, राइट? तो यू शुड हैव सम कॉन्फिडेंस कि यार उतना तो इंग्लिश हमने पढ़ा है कि अगर हमें प्रॉब्लम हो रही हो तो 90% लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। वोकैब में, वोकैब का डेवलपमेंट इफेक्टिव रीडर करेगा बेटा। वोकैब कौन डेवलप करेगा? हु डेवलप वोकैब, मतलब मेरे से पूछ रहे थे कि आज के ये किस तरीके का क्वेश्चन था, मैं समझ नहीं पाया। हु डेवलप वोकैब मतलब बोलने का ऐसा भी तरीका, वोकैब कौन डेवलप करता है, ऐसा तो नहीं पूछ रहे हो ना, कि ऐसा पूछ रहे हो सर वोकैब कौन डेवलप करेगा, इफेक्टिव की इनइफेक्टिव, विच वन? मानसी, वोकैब कौन डेवलप करता है आजकल, ये था क्वेश्चन। सचेता, सॉरी, या हु ऑफ द टू विल डेवलप द वोकैब? व्हाट वाज योर क्वेश्चन? बेटा सचेता, आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया? We have developed vocab. You have to develop vocab. Yes, you have to develop vocab. Yes, very important. Right? ठीक है, राइट। सो सबसे पहले रीड फॉर आइडियाज नॉट फैक्ट्स। चलो आपको एक मैं छोटी सी एक्सरसाइज दे रहा हूं, आप इसमें क्या करोगे, ये एक्टिविटी है। अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन दिस पैराग्राफ, इग्नोर द लिंकिंग और कनेक्टिंग वर्ड्स। सुनो, पढ़ने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट वर्ड्स वो होते हैं जो मेरे को बेसिक आइडिया में आने तक समराइज
मतलब बेसिक आइडिया में आने तक हेल्प करे। इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। क्यों क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मेरे को किसी चीज के बारे में क्या लिखा है वो जानना जरूरी है, वो चीज क्या है उसके बारे में जानना, मतलब वो ना जानू भले, मतलब ये क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के बदले टाइफॉइड भी नाम होता तो चल जाता, मेरे को उससे परेशानी नहीं, लेकिन इसके बारे में क्या लिखा है वो जानना जरूरी है। वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब्स, क्योंकि एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन की क्वालिटी बताते हैं, मतलब जिसके बारे में लिखा गया है उसके बारे में कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन देते हैं, अच्छी या बुरी कुछ भी दे। एडवर्ब्स जो होते हैं वो भी वही काम करते हैं, वो वर्ब्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, अच्छी या बुरी जो भी। तो आपको इस पूरे में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो ढूंढने हैं, ठीक है। इग्नोर द लिंकिंग और कनेक्टिंग वर्ड्स। इंपॉर्टेंट वर्ड्स की दो कैटेगरी हो, बेटा ध्यान से सुनना, पढ़ने का टाइम इनफ दूंगा आपको, अभी मेरी बातें आप सुनने पे ध्यान लगाओ। इंपॉर्टेंट वर्ड्स दो कैटेगरी के हो सकते हैं, एक एडजेक्टिव और एडवर्ब्स जो किसी की क्वालिटी बताते हैं। दूसरे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं लिंकिंग और कनेक्टिंग वर्ड्स। लिंकिंग और कनेक्टिंग वर्ड्स कैसे होते हैं? जैसे पहला फिलअप मैंने किया था ना, एंड लिखा हुआ था, कनेक्टिंग वर्ड, मैंने बोला यार एंड लिखा है मतलब दोनों ब्लैंक में किस तरीके का रिलेशन आना चाहिए, बट लिखा है तो किस तरीके का रिलेशन आना चाहिए। ये होते हैं लिंकिंग और कनेक्टिंग वर्ड्स जो सेंटेंस के दो पार्ट्स को जोड़ते हैं। बट आप अगर उन वर्ड्स को समझ जाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि दो पार्ट्स के बीच में रिलेशन किस तरीके का। उन वर्ड्स को अभी के लिए आप इग्नोर कर दो। These two are the categories of the words that are very, very important. So your focus should be on finding the important words in this passage. All right, I'll give you 2 minutes time to do. ओके, बताइए क्या क्या वर्ड्स आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट है। एनीबडी हु विल लाइक टू स्पीक, तो मैं उसको अनम्यूट करने की परमिशन दे दूंगा, और एटलीस्ट यू कैन टाइप एंड सेंड मी।
ओके, सो बेटा देखो, जिनको कुछ ऐसा कोई है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो मैं हेल्प कर दूंगा थोड़ी। सिद्धांत बोथरा, वेरी गुड, यू हैव गिवन मी ऑल द राइट वर्ड्स एट वन गो। बेटा कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे पिंग कर दो, मैं बिना नाम लिए आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्या करना है। ठीक, नो वन, राइट। मैं इसको ऐसे देखता, अगर मुझे ये एक्सरसाइज दोगे तो मैं ऐसे देखूंगा, यार मैं को मान लो ये एक्सरसाइज करने दी गई है, मुझे ये सोचना है व्हाट विल हाउ विल आई आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट वर्ड्स, व्हाट विल आई डू। मैं ये सोचूंगा कि मेरे को एक फ्रेंड मिला है, ये एक्सरसाइज के बाद, मेरी क्लास के बाद मेरा एक फ्रेंड मिला, और उस फ्रेंड को मुझे बताना है कि तुमने आज क्या पढ़ा, मैंने आज क्या पढ़ा, तो मैं अपने फ्रेंड को क्या बताऊं। द मोमेंट मैं उसको बताया यार मैंने आज क्रोनिक फटीग सिंड्रोम के बारे में पढ़ा, वो अपने कान बंद कर लेगा, भाई क्या बकवास करने वाला है ये मैं नहीं बताऊंगा। ही विल शट हिज ईयर्स, बोलेगा क्या बकवास कर रहा है, आई एम नॉट गोइंग टू हियर। मैं उसको ये बताऊंगा कि यार पता है 1 मिलियन अमेरिकन और 25,000 या कितना है 2.5 लाख पीपल इन यूके इनको इफेक्ट हुआ। वो उसके दिमाग में क्या चीज रहेगी, उसके दिमाग में बस ये चीज रहेगी, अरे बहुत सारे लोग हुआ, उसको नंबर तो याद नहीं रहेंगे, मेरे को भी नहीं रहते। दीज थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट आई विल टेल हिम इज दैट, यार पता है मैंने एक बीमारी के बारे में पढ़ा आज, ये बहुत से लोगों को इफेक्ट कर रही है, इसका जो इफेक्ट है ना वो डिवास्टेटिंग है, बहुत खतरनाक है। डिवास्टेटिंग, मैं उसको बोलूंगा बहुत खतरनाक है, तो उसको याद रहेगा बहुत से लोगों को पीड़ित हुए हैं और बड़ी खतरनाक बीमारी है। ये सब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, फिर उसमें ये सब थोड़ी ना बताऊंगा कि उसमें मैंने पढ़ा एक आदमी के साथ कुछ इंटरेस्टिंग होता और बताता, उसको याद, वो बोर हो जाएगा। ये सब मैं नहीं बताऊंगा। माय सन हैज सीएफएस एंड इज ओनली एबल टू गेट आउट ऑफ बेड, नहीं काम का है मेरे लिए। सबसे इंपॉर्टेंट अभी काम का हुआ डिवास्टेटिंग, एक बीमारी जो भयंकर डिवास्टेटिंग है, खतरनाक है, बहुत लोग अफेक्ट हुए उससे। फिर आगे बढ़ रहे हैं, द डिजीज इजंट अबाउट टायर्डनेस, इंपॉर्टेंट वर्ड, इट इज जस्ट दैट पेशेंट जस्ट कोलैप्स if they go beyond their available energy। अरे खतरनाक है, इसको मैं बता रहा हूँ, फिर ये बहुत खतरनाक है, पता है ये थकान के बारे में नहीं है, इसमें थकान नहीं होती है। होता क्या है, अचानक से गिर जाता है इंसान, ऐसा नहीं कि स्लोली स्लोली थकान होती है, अचानक से गिर जाता है, अगर उसकी एनर्जी लेवल कम हुई तो अचानक से गिर जाता है। तो ये एक बीमारी की इंपॉर्टेंट चीजें मुझे यहाँ पता चली। इट इज नॉट अबाउट टायर्डनेस बट द पेशेंट जस्ट कोलैप्स if they go beyond available energy। तो collapse is important word for me again। फिर आगे जा रहा है, ये लोग इतने सिक हो जाते हैं दैट दे आर नॉट एबल टू ब्रश देयर टीथ और च्यू देयर फूड। इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, याद रह जाएगा क्योंकि ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है, वो खाना भी नहीं खा पाते हैं, इतने बीमार हो जाते, बता दूंगा। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, येट बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन ध्यान नहीं देना क्योंकि लिंकिंग और कनेक्टिंग वर्ड में ध्यान नहीं देना। फिर मैं उसको बोलूंगा यार पता है बट इतना सब होने के बावजूद भी पिछले कई सालों से इसमें कोई काम नहीं किया गया। दिस इज इंपॉर्टेंट, प्रोवर्बियल स्केलेटन इन द क्लोजेट ऑफ मेडिकल वर्ड। प्रोवर्बियल स्केलेटन का मतलब क्या होता है, बोलने का ढांचा, बोला बस जा रहा है, कुछ किया नहीं जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है, आगे इंपॉर्टेंट वर्ड है कि जो रिसर्चर है वो स्केयर्ड है, स्केयर्ड ऑफ बाय द स्टिग्मा एसोसिएटेड विद द डिजीज। ये बोलूंगा वो लोग काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये इस पे कोई काम करता है उससे डरते हैं क्योंकि इस बीमारी के साथ एक स्टिग्मा अटैच्ड है। बस इतना काम की चीज है। तो कुल मिलाकर के मेरे लिए जो वर्ड्स हुए इंपॉर्टेंट, वो हुआ बीमारी का डिस्क्रिप्शन विच इज डिवास्टेटिंग, इट इज नॉट अबाउट टायर्डनेस बट पेशेंट जस्ट कोलैप्स। तो बीमारी के 3 चीजें मैं लिख लेता हूं, डिवास्टेटिंग, नॉट टायर्डनेस एंड कोलैप्स। फिर इसमें काम क्या किया जा रहा है, बोलो कुछ नहीं, प्रोवर्बियल स्केलेटन। आपको प्रोवर्बियल स्केलेटन की मीनिंग नहीं भी पता है तो आपको ये समझ जाना था ये डिस्क्राइब कर रहा है, डिस्क्राइब करने वाली चीज इंपॉर्टेंट होती। क्यों, क्योंकि स्टिग्मा अटैच्ड है और इससे साइंटिस्ट या जो रिसर्चर है वो डरते हैं। बस ये मेरे काम की, बाकी चीजें आपको ध्यान नहीं रहेंगी। दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द इंपॉर्टेंट वर्ड्स, बट वी डोंट हैव टू फाइंड द इंपॉर्टेंट वर्ड्स, अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड द इंपॉर्टेंट आइडिया। Now how to identify the important idea or the main idea,
is what is the content of the passage and what is author saying about it. So content of my passage is about this disease CFS and its devastating effect, and author is saying that because it is devastating, फिर भी उस पे काम नहीं किए, बस इतना छोटा सा मेन आइडिया ये है. ठीक है, so that's how you identify the keywords. That's where your focus should be when you read. चलो next, identify the most important sentence in the following paragraph. Remember, what will be the most important sentence in any paragraph? The most important sentence in any paragraph is the sentence जिसको लिखने के लिए या जिसको बताने के लिए बाकी चीजें लिखी गई हैं. It is the most important sentence. Of course, उसको हटा दो तो बाकी चीजें अधूरी लगती है. कुल मिला के कंक्लूजन बताना कि यार ये इस वजह से ये हुआ है. Not always the reason, but a sentence which binds everything along with it. That is the most important sentence. तो आराम से इसको पढ़िए. आपको तो मैं टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट का. This can be done in a minute's time. Do it. Okay. ध्यान रखेंगे, आपको जो चीज समझ में आ रही है वो जरूरी नहीं इंपॉर्टेंट सेंटेंस हो. आप ये सोचो कि यार ये अल्टीमेटली क्यों लिखा गया है, क्या बताना चाह रहा है. आंसर्स प्लीज. बेटा ईशांत, आप फोकस कर रहे हो, करना क्या है, आप मेरे को वर्ड मत बताइए. मैंने कितने आराम से एक्सप्लेन किया. वेयर वेर यू. प्लीज गाइस, only 2 people have answered. I want more answers.
All right, understand like this. There is something happening in the passage. ठीक? There is something happening in the passage. All right. What is important is, क्या कोई सेंटेंस इसको बता रहा है वो इंपॉर्टेंट है, या पैसेज में ये क्यों हो रहा है उसका रीजन दिया है वो इंपॉर्टेंट है. What I mean to say is, what is more important or why is more important. फिर से बार बार वही बोल रहा हूं, पैसेज क्यों लिखा गया है. दिस इज द राइट आंसर. क्या यार, डिसअपॉइंटेड. आपको ये मिस्टर ल्यू का नाम डिफिकल्ट लग रहा था तो मिस्टर आर रख देते, राम रख देते, एल रख देते, कुछ भी रख लेते. आप देखो क्या दिखा रहा है यहाँ पर, क्या बोल क्या रहा है, आप उसको समझने की कोशिश करो. एक मिस्टर आर की कहानी बता रहा है, मिस्टर एल की कहानी बता रहा है. ठीक है, बोल रहा है कोई भी इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रोफेशनल लॉयर इनसे नहीं मिल सकते. अच्छा, क्यों नहीं मिल सकते. अब मन में अगला सवाल आता है, क्यों नहीं मिल सकते यार, क्या प्रॉब्लम है. अच्छा, क्योंकि this is particularly troubling given that Reuters recently reported that Mr. L's time is limited because of fluid built up around his stomach. ये क्या करना है तुमको कि वो क्यों मरने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है. बेटा सिंपैथी मत दिखाया करो कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अपना पर्पस समझो यहाँ. ठीक है, ये बोल रहा है कि उनका टाइम लिमिटेड है. ये रॉयटर्स में अभी आया था, फिर भी मेडिकल प्रोफेशनल्स और लॉयर उनको मिल नहीं सकते. मिस्टर एल्स वाइफ इज ऑल्सो अंडर हाउस अरेस्ट. अच्छा, उनकी वाइफ को भी हाउस अरेस्ट करके रखा है और वो भी अपने हस्बैंड से नहीं मिल सकती. तो मन में ख्याल नहीं आ रहा है कि यार ऐसा क्यों कर रहा होगा. ये सब हो रहा है, मरने वाला है वो इंसान, मेडिकल प्रोफेशनल्स उसको देख नहीं पा रहे हैं और उनकी वाइफ भी मिल नहीं सक रही है. इन द मीन टाइम, इसी समय चाइनीज अथॉरिटीज ने एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें एक फिगर को एक्सरसाइज करते दिखा रहे हैं और वो बोल रहे हैं ये फिगर मिस्टर एल है. उनको एक्सरसाइज और मेडिकल एग्जामिनेशन करते दिखाया जा रहा है और बोल रहे हैं मिस्टर एल जो है वो सब सही है, उनका ट्रीटमेंट बस रूटीन ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. As indicated by his release from prison on medical parole and Chinese state's condemnation of outside meddling. बोल रहा है कि चाइना बोल रहा है जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, उनका रूटीन चेकअप हो रहा है, सब ठीक है, वो प्रिजन से निकले हैं, उसके बाद का उनका चेकअप बस हो रहा है, उनकी तबीयत ठीक है. और चाइना बोल रहे बाहर की दुनिया को हमारे अफेयर्स में मेडल करने की जरूरत नहीं है. मेडलिंग मतलब है मेरे अफेयर में बीच में नाक मत घुसाओ. ये साइन है कि अथॉरिटीज चिंतित हैं. क्यों चिंतित है, क्योंकि बीजिंग को कंसर्न, चिंता इस बात की है कि अगर एक फेमस डिसिडेंट की मौत हो जाती है तो इंटरनेशनली उसकी रेपुटेशन को क्या होगा. डिसिडेंट मतलब होता है जो सरकार के विद्रोह में खड़ा होता है. वो फेमस विद्रोही अगर की डेथ हो जाएगी तो सरकार की इंटरनेशनल रेपुटेशन को क्या होगा, बहुत धक्का लगेगा. बोलेंगे कि सरकार जो है अपने जो अपोज में खड़ा होता है उसको मार देती. ठीक है, तो कहानी क्या है, कहानी यह है कि उनकी तबीयत खराब है ऐसा न्यूज में आ रहा है, बट फिर भी किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है. चाइनीज अथॉरिटीज जो है उसी समय वीडियो रिलीज करती है कि सब चीज ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमारे अफेयर्स में नाक मत डालो. चाइनीज अथॉरिटीज ऐसा इसलिए कर रही हैं क्योंकि उन्हें चिंता इस बात की है जो लास्ट लाइन में दी. समझ में आया. What you were focusing is absolutely not required, that his time is limited. Most important line ये नहीं है. Most important line इस पैसेज को लिखा क्यों गया है वो बताने के लिए लिखा इसलिए गया है क्योंकि बीजिंग का कंसर्न बताने के लिए लिखा गया है with respect to Mr. Liu. We don't know whether Reuters is right or whether Chinese authorities are right. वो नहीं. कभी भी समझना एक चीज को, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस ना हमेशा ऑथर की व्यू होगी, इस चीज का ध्यान रखना. मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस कभी ये नहीं होगा जिसमें वो फैक्ट्स को सिंपली बता रहा है कि चाइना ने क्या किया और रॉयटर्स ने क्या बोला या मीडिया ने क्या बोला. मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस वो कभी नहीं होगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस तो वही होगा कि ऑथर ये चीजें लिख क्यों रहा है, क्या बताना चाह रहा है. ये उसकी व्यू थी कि बीजिंग जो है ना वो कंसर्न्ड है, क्लियरली वर्ड लगा दिया है, इसकी व्यू है. I hope you got it, guys. Please tell me yes or no. And more than understanding, you have understood that. या पहले एक बार में एक चीज करते, बताइए समझ में आया कि नहीं.
अब आपको ये समझ में आया कि ये इंपॉर्टेंट लाइन क्यों है, बट मोर इंपॉर्टेंटली आपको ये समझ में आना चाहिए कि बॉस देखना क्या है, ऑथर की व्यू देख, वो उस व्यू तक आने के लिए जो फैक्ट्स दे रहा है, कितने भी अच्छे फैक्ट्स दे रहा हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप भी एक ऐसे लिख रहे हो या डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस होगा डिबेट का, वो होगा कि आपका स्टांस क्या है, राइट? व्हाट इज द साइड दैट यू आर टेकिंग बिकॉज ऑफ विच यू आर पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट। उस पॉइंट तक अराइव होने के लिए आपने जो एविडेंसेस यूज किए वो इंपॉर्टेंट है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है? ओके, आपके पास 3 मिनट का टाइम है, ये पैसेज आपके सामने है, और 1 मिनट का टाइम फिर उसको आंसर करने के लिए लेना। ठीक है? राइट, सो या सो 3 मिनट्स टाइम, थोड़ा सा फास्ट पढ़ के देखते हैं कितना हमें दिमाग में याद रहता है। ठीक है, हाउ मच वी कैन रिमेंबर। डू नॉट रिग्रेस, वापस मत जाना, चलो टेक इट एज अ चैलेंज, जितना याद रहा रहा।
जी डन. फर्स्टली आई विल टेल यू द आंसर सो दैट यू कैन चेक, बिकॉज थोड़ा सा मैंने स्पीड में करने बोला था. कितनों का हो गया बाय द वे? ऑनेस्ट रह करके बताएं. आशुतोष का एक यस आया है बस. गाइस इधर यस या नो में मेरे को 10 सेकंड में जवाब चाहिए. आप इतने, अपन ने टास्क लिया था ना, खत्म करने का कोशिश करनी चाहिए थी आप लोगों को. ठीक है चलो देखते हैं. जिनका नहीं हो पाया दे नीड, इट्स नॉट दैट कि स्पीड में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट था. मैं अभी पढ़ के आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे उसको 3 मिनट में पढ़ सकते थे. ठीक है. आप लोगों ने बहुत बार बार जाकर के रिग्रेस किए होगे. दैट्स व्हाई. लेट अस सी what is the chronological sequence of this event. Anyone who tell me what happened, किस sequence में हुआ, सबसे पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ? Very easy. चलो सबसे पहले क्या हुआ? ओके आशुतोष इज सेइंग सबसे पहले हुआ 4. ठीक है आशुतोष, सबसे पहले हुआ 4. ठीक है फिर उसके बाद क्या हुआ? 2. राइट. मिस्टर नुमोनिया विजिट्स जॉन्सी. फिर उसके बाद क्या हुआ? द डॉक्टर वॉन्ट्स Sue that Johnsy does not have many days to live. 1. And after that 3 and last is 5. So this is the right sequence in which the things happen. 4, 2, 1, 3, 5. Okay, just a minute. Okay, in what month did Sue and Johnsy start their studio? Very easy. वापस जाके नहीं देखना है, मेमोरी से आंसर करो. अपने आप से ऑनेस्ट रह करके देखो. वापस जाके मत देखो. हम याद रखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने पढ़ा क्या है, कितना याद है हमें. ऑल्दो इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट ट्राइंग टू सी आवर मेमोरी. मई या नवंबर? ओके so they started it in the month of May. नवंबर भी मेंशन्ड है बट वो और किसी चीज पे के रेफरेंस में मेंशन्ड है. चलो ट्रू एंड फॉल्स बताओ. Sue and Johnsy are best friends. पढ़ के क्या लगता है? ट्रू फॉल्स या कैन नॉट बी डिटरमिन्ड? क्यों बोल रहे हो बेटा बेस्ट फ्रेंड्स है? Why are you saying that they are best friends? Just because they have started the studio together? Nowhere in the passage it is given that they are best friends. Answer is cannot be determined. Just because you have started a business with someone doesn't make you best friend. Just because you are sharing apartment with someone doesn't make you best friend. This is called as unnecessary का ज्यादा ज्ञान लगाना. ठीक है, ये पता नहीं हम पढ़ते समय ही लगाते हैं, रियल लाइफ में इतना नहीं सोचते हैं. जॉन्सी हेट्स वाइन. दिस इज फॉल्स. वापस मत जाओ. दिस इज फॉल्स. व्हाई? बिकॉज उसके फ्रेंड ने बोला कि आई विल गेट इट फॉर यू. दिस ये नहीं है. द डॉक्टर इज पेसिमिस्टिक अबाउट जॉन्सीज चांस ऑफ सर्वाइवल. यस नो कैन नॉट बी डिटरमिन्ड. डॉक्टर जो है वो पेसिमिस्टिक था जॉन्सी सरवाइव कर पाएगा उसको लेकर के. एक चीज मुझे बताओ, डॉक्टर ने कितनी चांस दी थी जॉन्सी को जीने की? 1 in 10. 1 in 10 चांस दी थी जीने की. वो चांस
पेसिमिस्टिक है कि ऑप्टिमिस्टिक है? आंसर इज ट्रू. Sue was from California, John C was from Maine. Answer is cannot be determined. Why? Because if you read those lines, उसमें ये नहीं लिखा है कि कौन किस जगह से था, उसमें बस बोला ये दो लोग दो जगह से थे. रिस्पेक्टिवली वर्ड नहीं है. I can't say who belongs to which place. Cannot be determined. Okay. Last one, true. अब अपन देखते हैं बॉस था क्या ये मैं पहले आंसर इसलिए बता दिया बिकॉज कुछ लोग मेहनत से पूरा पढ़े होंगे. मेहनत तो खैर सभी मेहनत से पढ़ रहे होंगे, बट कुछ लोग अकल लगा के पढ़े होंगे कि यार थोड़ा तो उनको आंसर पहले जानना जरूरी था. तो दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू द आंसर्स. द इम्पोर्टेंट थिंग इज ये समझना कि हमें कितनी चीजें याद रहती हैं. ऐसा नहीं है कि हमें दिमाग में जोर देकर के चीजों को याद रखना है. वी कैन ऑलवेज कम बैक एंड चेक, बट आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा ही आप ठीक करते हैं. दैट इज व्हाट द पॉइंट इज. आई एम श्योर यू मस्ट हैव रियलाइज्ड कि आप जितना सोचते हैं उससे बेटर आपने किया होगा. जिन्होंने ऑनेस्टली एक्सरसाइज की है उनके लिए. क्या मैं सही हूं गलत हूं? ठीक. अभी अपन पैसेज देखते हैं. 3 लोगों ने यस बोला है, बाकी लोगों का अभी अगर आ जाए, नो भी आ जाए तो चलेगा. मैं गलत भी हो सकता हूँ, हर इंसान अलग अलग है. चलो अभी देखो ये पढ़ने समय हमें दिक्कत कहां पर होती है ना. मैं दिखाता हूं आपको क्या करना चाहिए था. एट द टॉप ऑफ स्क्वाटी 3-story brick, Sue and Johnsy had their studio. ये वाली चीज कोई काम की नहीं थी, ये सिर्फ बिल्डिंग का डिस्क्रिप्शन है. So Sue and Johnsy had their studio. Johnsy was familiar with Joanna. One was from Maine, the other from California. They had met at this. ये कुछ समझ में नहीं आया, ये भी आपके लिए जरूरी नहीं था. They had met at a particular place and found their taste in art, salad and bishop's leaves so congenial that they joint studio that the joint studio resulted. तो फर्स्ट पैराग्राफ में सिर्फ वो बताया कि उनका स्टूडियो है और वो कहां से थे. बेसिक इंट्रोडक्शन. दैट वाज इन मे. ये मई के समय हुआ क्या स्टूडियो चालू. फिर क्या हुआ? इन नवंबर अ कोल्ड अनसीन स्ट्रेंजर whom the doctors called pneumonia stalked about the colony, touching one here and there with his icy finger. Over on the east side of this ravager strode boldly smiting. ये हमें कुछ समझ में नहीं आया. Did not understand. बस ये समझ में आया कि यार नवंबर के महीने में कुछ बुरी चीज हुई. एक अनसीन स्ट्रेंजर आ गया जिसे डॉक्टर्स निमोनिया कहते हैं. वो थोड़ा जो उतना समझ में आया उसके बाद हमें ये चीजें नहीं समझ में. सेकंड पैराग्राफ एकदम से डिप हो गया, हमें समझ में नहीं आया. अब यहीं पर जो लोगों का 3 मिनट में खत्म नहीं हुआ वो इसको बार बार जाके पढ़े कि क्या है यार, क्या है यार. कितने लोगों ने ऐसा किया था जो सेकंड पैराग्राफ को फिर से जाकर के एक बार पढ़े थे? टेल मी. So does the third paragraph. कुछ समझ में नहीं आया. थर्ड पैराग्राफ भी कुछ समझ में नहीं आया. यहाँ आते आते हमारा जो उम्मीद थी वो नीचे होने लगी और यहीं पर जाकर के हम रुक गए. Kindly tell me those who were not able to complete the passage in time, was this the problem? सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ इसको बार बार एक बार और जाकर के पढ़े आप. ऐसा हुआ था क्या? नहीं हुआ था तो नहीं बता दो, आगे बढ़ेंगे. ठीक. तो देवांश के साथ नहीं हुआ था, बट आई थिंक देवांश जितना मुझे याद है सबसे पहले तुम्हारा खत्म भी हुआ था. तुमने नहीं, आशुतोष का खत्म हुआ था सबसे पहले. ठीक है, राइट. तो बात ये है कि हमें वापस जाकर के पढ़ के भी कुछ हासिल नहीं हुआ. जिन्होंने यश लिखा है, क्या वापस जाके आप पढ़े तो आपको कुछ हासिल हुआ? कुछ समझ में आया? ज्यादा नहीं आया होगा, 5% ज्यादा आ गया. The thing is, you should have progressed there, and then your life becomes so easy. यहाँ से one morning the busy doctor invited Sue into hallway with a shaggy grey eyebrow. और इसके बाद से हमें सब समझ में आने लग गया. और वो बोलता है कि she has one chance in, let us say 10. He said one chance in 10. और इसके कंडीशन के बारे में बात किया हुआ है. ठीक.
जॉन्सी और स्यू के कंडीशन, मतलब किसके कौन बीमार कौन पड़ा है, या जॉन्सी के बारे कंडीशन के बारे में डॉक्टर बोलता है कि 10 में से 1 चांस है। जॉन्सी की हरकत यह है कि पत्तियां गिरती रहती हैं, वो गिनता है, उसको गिनता है या गिनती जो भी, उसे ये लगता है द मोमेंट ये पत्तियां सारी गिर जाएंगी उसकी भी डेथ पास आ जाएगी, मतलब डेथ हो जाएगी। दैट इज दी पैसेज। इतना हमें सबको समझ में आया। ये जो सेकंड और थर्ड वाला स्लाइड है इसमें कुछ था नहीं, बस यही बात थी, उनकी बातचीत के तौर पे बताया था, कन्वर्सेशन था, इसलिए आपको फास्ट पढ़ लेना चाहिए था। ठीक है, राइट। सो ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको इतनी ही फास्ट पढ़ना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हम स्लोली ही उस ऑब्जेक्टिव के तरफ पहुंचेंगे जहां पर हम इफेक्टिव रीडर बन पाए। ये एक अलग तरीके की एक्सरसाइज थी जस्ट टू प्रूव दैट कि आप लोग जितना सोचते हैं आपको उससे थोड़ा सा ज्यादा ही याद रहता है व्हेन यू हैव रेड समथिंग। तो मेनी टाइम्स वी अंडरएस्टिमेट आवर कैपेबिलिटीज, एंड ऑल्सो शुरुआत थोड़ी सी डिफिकल्ट हुई, हम वहां छोड़ देते हैं, उसको छोड़िए मत, ठीक है, उसको कंटिन्यू कर। ठीक, अब आप लोगों का जो असाइनमेंट है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो सिमिलर है, ये आप नेक्स्ट क्लास से पहले करके आओगे। पैसेज नंबर 2 सिमिलर एक्सरसाइज है, ये आप करके आओगे, और नेक्स्ट क्लास में मैं एंटीसिपेशन वाली जो 2 एक्सरसाइजेज हैं उस पे मैं काम करवाऊंगा, मतलब हम एंटीसिपेशन इन रीडिंग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोगों को जो है दूसरा वाला पैसेज खुद से अटेम्प्ट करना है, पैसेज 3 और 4 अटेम्प्ट करके आना है, लेकिन मैं एट लेंथ क्लास में डिस्कस करूंगा। आप इनको अटेम्प्ट करके आएंगे 3 और 4 को, तो अपना टाइम बचेगा। मैं यहाँ पे जो आपको पढ़ने का टाइम दे रहा हूं वो वेस्ट नहीं होगा ना। वी कैन सिंपली गेट इनटू डिस्कशन एंड डू मोर एक्सरसाइजेस। इसके बाद मैं और भी एक्सरसाइज करवा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, whenever my next class happen, passage number 2 is your homework, passage 3 and 4 आप attempt करके आएंगे, so that we can get into the discussion mode directly. All right, okay, ध्यान रहेगा सबको। okay. अब आज हमने क्या सीखा? आज हमने देखा कि बॉस इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन से होते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव, एडवर्ब्स और लिंकिंग वर्ड्स, ये होते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स। हमने जाना कि इंपॉर्टेंट सेंटेंस क्या होता है। इंपॉर्टेंट सेंटेंस इज समथिंग because of which the entire passage is written. It will be author's opinion. It will be the opinion where author gives his idea about a particular topic in discussion. That is the main idea. And then we did a quick exercise on speed reading, right? तो उसमें हमने देखा many times शुरुआत में जब डिफिकल्टी होती है तो we go back and regress. Please don't do it. आप कंटिन्यू करिए, थोड़ी देर बाद आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। Fine. So these are the learnings from today's class. If you have any doubt, you can ask me. Or we can end the class then. All right, guys, then. Thank you so much.